program and Samatya organization. For those who are new to us, a small introduction about Samarthya. Samarthya is an organization which has been working for the benefits and the development of children with neurodiversity, children and young adults with neurodiversity. Our Pune-based center has various options and solutions for our children, right from therapies and interventions. You will find occupational therapy, speech therapy, special education, nutritional counseling, parents training and counseling, specifically NRS Soran academic support program, and special books which are designed for our children called Many Inclusive Books. Apart from these therapies and interventions, Samarthya is building in inclusive classrooms with SLD and LEN, SL, social emotional learning and LEN training. And the focus of our center is the family. It is a family-centric uh, uh, intervention. That's why we call ourselves Family Resource Center, which is established in Baner, Pune. We do lots of social skill group sessions. We do functional skill group sessions. Functional skill group, school readiness program is our one of a very good upcoming program. If any parent want to inquire about it, you please feel free to call us. Then we have Sukoon Parent Support Program, which is one of the most interesting program, which is known for many these things. Then we have Sensory Splash. So there are various programs you can know about our program in detail by connecting with us. I welcome to Samarthya family to all of you. Um, Today's webinar is in with association with SNCC Rehab Foundation. SNCC is another organization which is very much aligned with our goals, our vision. SNCC is also is also works in the same field, which is awareness programs for neurodiverse people, parent empowerment, activities and empowerment of special need children. They do lots of advocacy work. They have many community support programs. Their focus is inclusive education and support system for parents. Um, Unfortunately, Harshali, who is also a special need parent and the founder director of SNCC organization, she is not able to join us today. But parents, in case you want to know about this organization, please go Google them. You will find some amazing stories about parenting. Today's topic, yes, I'll come to today's topic. It is about digital skill and career for neurodivergent children. And our esteemed guest today is Mr. Rakesh Hasmana. Rakesh ji, can I see you on the screen? Namaste, Bhavana ji. I'm very much there. Yes, yes. Sorry, we were not able to. My audience was. So Rakesh ji is a social entrepreneur, a very passionate disability stream worker, and the kind of solutions he has brought into the special education field and the disability field, that's amazing. So before I actually call him for speaking, I would like to share a small video link about him which talks about the kind of work which has been done. This will give you a good idea about his area of work.
Sanika, is the audio coming? No, Bhavna, the audio is. I'm so sorry. Can you help me? Maybe I can replay it. How to share share it in such a manner that the audio also comes? Wait. I do one thing. I will maybe we can do it a little later. We don't want to. I don't want to take more time here. So I just let me stop. Are you still? Huh. Okay. I would like to now invite Mr. Rakesh to talk about today's topic. And Rakesh, welcome to the webinar. And I will start the whole discussion with the first question. Is a digital career possible for children with neurodiversity? So, Bhavnaji, very good evening, and all the parents who have joined this meeting room today from different part of the nation are very welcome to this talk. I hope that whatever knowledge I have gained in last 2 decades of my career life, next few minutes, whatever I will try to speak, try to share, hope it will add a value to your knowledge. It will enlighten some of the hope, some of the guidance. So your question, Bhavnaji, yes, it is very much possible. And the kind of world we are living today, there are a lot of dimensions related to employment and employability also. So in short, the answer is yes. Mm, great. So now I would like you to take uh, this journey forward and talk about all the AIMS Media's signature program, which is about animation, digital education, right from the beginning. Because हमारे साथ इस समय लगभग 50 पेरेंट्स जुड़े हुए हैं देश के हर जी हिस्से से. तो आप अगर जी इसको बाइलिंगुअल रखेंगे तो और आसान जी रहेगा. ओके जी सबसे पहले जी उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम जानना चाहेंगे आपके यहाँ एक बहुत अच्छा फैशन इनिशिएटिव भी है और बहुत सारी चीजें हुई हैं. Like, let's begin with the digital education part. How it happens, what do you do? ओके सो मैं एक प्रोफेशनल स्पेशल एजुकेटर या रिहैब प्रोफेशनल नहीं हूँ और 2008 में आप समझ सकते हैं जब पूरा ग्लोबल रिसेशन चल रहा था, लेमन ब्रदर्स, वॉशिंगटन म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी कंपनीज वर्ल्ड में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और अगर आपको याद हो तो वो समय कैसा था जब जैसे कोविड के बाद लोगों को स्क्रीन एज समझ में आया, ऐसे ही 2008 के बाद लोगों को ऑनलाइन मार्केटिंग समझ में आई, यानी जिसको आज हम ई मार्केटिंग बोलते हैं वो समझ में आया। और उस 2008 के ही समय था जब जेबोंग, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज फंड रेज कर रही थी, स्टैब्लिश कर रही थी अपने आप को। और बाहर की कुछ कंपनी ईवे, अमेजोन कुछ स्टैब्लिश हो चुकी थी, कुछ स्टैब्लिश करना चाहती थी। वो एक ऐसा समय था, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिस प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑफ रिहैबिलिटेशन, तो मेरा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था इस सेक्टर से। बट हमारा एक विंग है जहाँ पे हम लोग ऑडियो विजुअल्स तैयार करते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, एनिमेशंस बनाते हैं, वॉक थ्रूज बनाते हैं। और अगर आप ई शॉपिंग करते हैं और आपने अगर ई शॉपिंग करी है तो आप देखेंगे, अगर आप ये एयरपॉड खरीद रहे हैं तो उसके आजकल तो 7-8 पिक्चर होती है, साथ में एक वीडियो होता है। बट उस समय में 7-8 पिक्चर नहीं होती थी, 3-4 पिक्चर होती थी अलग अलग डायमेंशंस की। और उन पिक्चर्स का एक प्रोडक्ट होता था, पीछे बैकग्राउंड एकदम फ्लैट व्हाइट होता था, कोई शेडो वगैरह नहीं होता था। उस काम को बोलते हैं इमेज क्रॉपिंग। सो वो काम हम लोग किया करते थे बिकॉज वी वर ऑलरेडी इनटू सम क्रिएटिव जॉब्स। और तो हमें लगता था कि चलो ये एक बड़ा एरिया है। बट द होल सिचुएशन टर्न्ड इनटू द होल गेम फॉर डिसेबिलिटी इन 2008। एम्स मीडिया बहरहाल 2008 में स्टैब्लिश हो चुका था, मगर 2010 में हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदला जब फॉर द फर्स्ट टाइम हमने किसी क्लासरूम के अंदर झांक के देखा कि देयर वर अ बंच ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन। और वो चिल्ड्रन नहीं थे, बाय द वे, दे ऑल वर अडल्ट। उसमें से काफी लोग तो 35 साल के, 40 साल के थे। और फॉर द फर्स्ट टाइम हमने कुछ ऐसा अपनी जिंदगी में देखा था कि लोग यूनिफॉर्म बैठ पहन के ऐसे क्लासरूम में बैठे हैं जहां पे वो शायद कुछ बहुत कॉन्क्रीट नहीं कर रहे। एंड देयर इज अ स्कूल इन दिल्ली, अगर आप में से कोई लोग दिल्ली से वाकिफ हैं तो दिल्ली में निजामुद्दीन करके एक एरिया है, वहां पे वाईएमसीए का एक स्कूल है। तो वाईएमसीए के स्कूल के अंदर एक विंग है जो स्पेशल नीड बच्चों के लिए है। हम लोग अपना कुछ और काम खत्म कर रहे थे वहां पे, और हमने ऑल ऑफ सडन क्यूरियोसिटी से, जैसे कोई पहली बार किसी क्लासरूम को ऐसा देखे तो उसको लगेगा व्हाट टाइप ऑफ क्लासरूम दीज आर।
और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम प्रिंसिपल मैम के पास पहुंच गए कि मैम वी वांटेड टू डू समथिंग फॉर दीज चिल्ड्रन बिकॉज वी कम फ्रॉम अ वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड। लाइक मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स और फाइनेंस है, और हमारी कंपनी में उस टाइम पे कोई भी रिहैब प्रोफेशन का रिसोर्स नहीं था। वी वर ऑलरेडी इनटू स्कूल मैनेजमेंट, करिकुलम सॉल्यूशन, लगभग कुछ 200-300 स्कूल को हम तब सर्विस दे रहे थे। तो हमने उनसे बात करी एंड शी सेड वन थिंग, और ये सभी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो हमें कहा, उन्होंने कहा कि यू पीपल आर वेरी यंग, इफ यू रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर दिस चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो बैक, लर्न अबाउट द कंडीशन, और उसके बाद जब आप पूरी तरह तैयार हो देन कम बैक। और उसके बाद अगर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे तो आई एम श्योर कि आप बहुत लंबा और कुछ सॉलिड काम करेंगे। बट आई डोंट वांट टू लूज योर कॉन्फिडेंस कि आप बस ऐसे ही आ जाएं और उसके बाद 6 महीने के बाद आप बोले कि नो दिस चिल्ड्रन कांट वर्क। सो दिस गिव्स अस इनसाइट कि यार बात तो सही कर रही है। इफ वी हैव टू डू समथिंग कॉन्क्रीट, और कॉन्क्रीट नहीं भी करना, अगर हमें कुछ करना है बड़ी अच्छी इंटेंशन से, सो वी शुड लर्न अबाउट। तो दिल्ली में एक हॉस्पिटल है इभास करके, जो इंडिया का पहला ओल्डेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है फॉर मेंटल एंड न्यूरो कंडीशंस। और हम वहां पहुंचे, वहां से फिर हम लोग दुनिया तमाम के हॉस्पिटल पहुंचे, निमंस गए, मैक्स गए, सेंट स्टीफन गए, और कई सारे पेरेंट्स से हम मिले। वो पेरेंट्स जो इंस्टीट्यूशन रन कर रहे थे पिछले 20-30 सालों से। अगर आप एक्शन फॉर ऑटिज्म को जानते हैं तो मैरी बरवा आप जरूर जानते होंगे। आप नेशनल ट्रस्ट जानते हैं तो उस टाइम पे चेयरपर्सन पूनम नटराजन जी थी, जो आज विद्यासागर की चेयरपर्सन फाउंडर हैं। ऐसे हमने पूरी इंडिया से अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग किया, 1-to-1। एंड इंटेंट वाज वेरी प्योर कि हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या ये हो सकता है। जैसे आज भावना जी ने सवाल पूछा पहला कि क्या ये पॉसिबल है, तो यही सवाल हमारा तब इन सारे एक्सपर्ट्स के साथ था कि आपने क्या ट्राई किया है, आप लोग कहाँ पे फेल हुए हो, क्या ये काम डुएबल है जो हम करना चाहते हैं। तो बड़े मिक्स फीडबैक थे, बट मिक्स फीडबैक के बाद एट द एंड ऑफ द डे योर कन्विक्शन वर्क्स। एंड विद दैट थॉट हमने कुछ कॉर्पोरेट को भी साथी बनाया। उसमें से कुछ एप्पल के ट्रेनर थे जो इंडिया में ट्रेनिंग दिया करते थे। मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, आजकल तो एप्पल आप सबके पास देखते हैं, बट 2008 में वो इतना अफोर्डेबल नहीं था, इतना एक्सेसिबल नहीं था। ब्लैकबेरी फोन जो है, आप अगर जान, आई एम श्योर आप जानते हैं, जो आज की डेट पे एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत डिफरेंट था। तो कुछ कॉर्पोरेट के साथियों को हम ऑन बोर्ड लाए, और उसके बाद हमने एक प्रोग्राम तैयार किया जिसका नाम हमने दिया एबिलिटी इनहैंसमेंट मल्टीमीडिया प्रोग्राम। बहुत सिंपल, बहुत सरल, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं थी समझने की। और वापस हम उस स्कूल में गए, YMC, और वहां से हमने इस एबिलिटी इनहैंसमेंट मल्टीमीडिया प्रोग्राम को कुछ 10 बच्चों के बैच के साथ एग्जीक्यूट किया। और हमने 9 महीने का एक पायलट करने के बाद we went back to Angelina Rekhraj, who were the principal that time, and we asked a very honest question. हमने पूछा, मैडम आप ऑनेस्टी से बताइए कि आपको इस प्रोग्राम से कोई इम्पैक्ट दिखा, और नहीं दिखा तो ठीक है, हम यहाँ पे कुछ करने तो आए नहीं थे, इट वॉज जस्ट अर इंटेंशन। और अगर दिखा तो आपको क्या दिखा और क्यों दिखा। सो उन्होंने एक बोर्ड तैयार किया, कुछ साइकेट्रिस्ट का, कुछ रिहैब प्रोफेशनल्स का, और उसके बाद उस बोर्ड ने एक रिपोर्ट हमें बना के दी। उस रिपोर्ट में जो हमें बताया, मतलब वो हमारे लिए पैरों तले जमीन खिसकाने जैसा था। उस रिपोर्ट ने हमें बताया कि उस बैच में पढ़ने वाले कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके बिहेवियर में चेंजेस आए। क्या होता है बिहेवियर, हमें तब नहीं पता था। कई बच्चे ऐसे थे जिनके अटेंशन स्पैन में बदलाव आया है। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर को यूज किया, आज वो डिजाइनिंग, स्टॉप मोशन एनिमेशन एक टेक्निक होती है, वो कर पा रहे। ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी हमारे लिए जो शायद उस समय में एक टेस्टिमोनियल थी, बट मुझे लगता है आज वो टेस्टिमोनियल नहीं, वो हमारे लिए एक करियर पाथ था, एक गाइड पाथ था, जिसने हमें समझाया कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पे कुछ किया जा सकता है। एंड फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर, फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, बैंगलोर टू चेन्नई, चेन्नई टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, आज हम लगभग 500 से ज्यादा स्कूल के साथ पार्टनर हैं। 37 कंट्रीज में हमारा नेटवर्क है, पार्टनर नेटवर्क है। 10 कंट्रीज में हमने डायरेक्टली सर्विसेज को अभी तक डिलीवर किया है, AEMP की। आज उस एबिलिटी इनहैंसमेंट मल्टीमीडिया प्रोग्राम को AEMP इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी एजुकेशन कहते हैं। 25,000 से ज्यादा बेनिफिशरीज को इम्पैक्ट किया। भारत सरकार की RCI एक रिसोर्स रिहैब प्रोफेशनल्स की कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, CRR पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए CRE नाम की एक कैंपेन कराती है। उसमें 300 से ज्यादा CRE में मैं रिसोर्स पर्सन की तरह पूरे भारत में ट्रैवल किया। और हमारा कोर सिर्फ एक था, हमारा एजेंडा बहुत सिंपल था कि अच्छा, हमें हर्ट क्या किया था, हमें स्ट्राइक क्या किया था उस दिन 2010 में उस क्लासरूम में। ऐसा क्या हुआ
कि जिसके कारण हम प्रिंसिपल के पास चले गए। उस क्लासरूम में हमने देखा कि काफी सारे बड़े उम्र के जो यंग एडल्ट्स थे वो पेपर बैग फोल्ड कर रहे थे, वो मसाला पैकेजिंग कर रहे थे, वो कैंडल्स, एक बड़ा लॉट कैंडल बना रहा था। और हमें लगा कि यार ये कैंडल बनाते तो हैं, बट इसे खरीदता कौन होगा? क्योंकि दिल्ली जिस शहर में हम रहते हैं वहां तो बिजली जाती नहीं है, और चली जाती है तो सभी के पास कोई ना कोई पावर बैकअप है, तो इसे खरीदेगा कौन? हु इज द पोटेंशियल बायर? और इसी क्यूरियोसिटी के साथ हम लोग इस पॉइंट पे जाके चलने लगे कि हमें इस एंगल को बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कश्मीर से कन्याकुमारी सभी लोग, जितने भी लोगों के साथ मैं ट्रैवल किया और मिला, देखा कि उस समय 2008, 9, 10, 11 एक बड़ा लॉट था जो कैंडल, पेपर बैग, मसाला पैकेजिंग इन पे काम कर रहा था। और मेरी लड़ाई ये नहीं थी कि हमें इन्हें बंद करना है, हमारी लड़ाई ये थी कि 1960, 1950, 1970 और 80 के दशक तक ये चीजें बहुत सक्सेसफुल थी, क्योंकि उस टाइम पे बिजलियां जाती थी, लोग कैंडल को ग्रोसरी की तरह बाय करते थे। बट आज की डेट पे बहुत बड़ा एक भारत जो इनको बाय करता है, उसके पास कैंडल बाय करने की प्रोपेंसिटी टू स्पेंड नहीं है, और बहुत बड़ा भारत जो इसको खरीद सकता है वो सिर्फ दिवाली और चर्च जाने के लिए इसको खरीदता है। तो हमें लगा कि क्यों ना एक ऐसे मॉडल पे काम किया जाए जो लोगों की लाइवलीहुड को न्यू एज के साथ जोड़ेगा। हम हमारे बच्चों को जब वो बड़े होते हैं और 12th खत्म करते हैं और जब वो उनके करियर के बारे में सीरियसली सोचते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि उसको पॉलिटेक्निक भेजेंगे, प्लम्बर बनाएंगे या फिर इलेक्ट्रिशियन बनाएंगे। हमारा विजन, चाहे वो हमारे पास पैसे हो ना हो, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा हो ना हो, बट हमारी चाहत हमेशा ये होती है कि हम हमारे बच्चे को इस रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड में, इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का एक हिस्सा बनाएं। और उस टेक्नोलॉजी हिस्सा बनाने के लिए उस एक्सेसिबिलिटी को तोड़ना बहुत जरूरी था जो लोगों के माइंडसेट में बैठी थी। सो 2010 Rakesh, से that's a very interesting point which you are raising, that some making tokeries and making candles is not enough. We need to really utilize their digital ability, which in any way with our children they have that ability on a higher level. Can you tell us a little more in detail and in a very chronological order, what is this multimedia program? How it happens, and if it is possible on screen, if you can please show that program, and you can show how it works. If a parent wants to get their child admitted from a very basic learning, what are the steps? So if you can give us a little more idea about the program, it will be really helpful for parents. I'll certainly do that. Bhavna ji, I intentionally don't want you to share, the program inside. I will share later on. But इतने साल समय बिताने के बाद, what I have learned one thing, I should not sell the program. I should empower the parents. जो empowered होगा, जिसका aligned होगा thought हमारे साथ, वो खुद भी बहुत कुछ कर सकता है। उसको सिर्फ हमसे गाइडेंस की जरूरत है, हैंड होल्ड की जरूरत है। तो प्रोग्राम में जरूर अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, मगर प्रोग्राम से पहले मैं 4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, ibef.org। आई रिपीट, ibef.org। इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे, इस वेबसाइट पे जाके आप, ये भारत सरकार का एक पेज है, आप इस पे जाके इंडस्ट्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरे भारत का एक इंडस्ट्री सेटअप समझ में आएगा। और ये आज का वेबसाइट नहीं है, ये बहुत पुराना वेबसाइट है। पूर्वा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यू वांट टू आस्क? Purva, you have a question? नो, या शैल आई टेक द क्वेश्चन एट एंड? तो मैं थोड़ा बोल के फिनिश कर Yes, दूं? yes, yes. We will take all the questions in the end. And sir, please keep your thing in bilingual, Hindi, both, because we have lots of South Indian parents who will not understand. Sure, sure. So I will suggest you to please go through ibef.org. It's a website. Once you will go here on the industry size, if you will understand the scope and size of each and every industry in India. Now, if you will do a little bit research on internet, and you will amazed to know media and entertainment industry is one of the industry in India who is progressively growing in last precisely 10 years or 20 years of time. अभी क्या होता है मीडिया और एंटरटेनमेंट, IBEF, आई फॉर इंडिया, IBEF। ये क्या होता है मीडिया और एंटरटेनमेंट? ये हम कुछ भी जो बात करते हैं, कोई भी मीडियम हो, इधर इट्स पेपर और इट्स विजुअल्स और इट्स एनिमेशन और इट्स सिनेमेटोग्राफी,
जो भी हम काम को मल्टीमीडिया फॉर्म में देख पाते, यस इट इज राइट, IBEF। सो जो भी हम देख पाते हैं, इट कम्स अंडर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा वॉल्यूम होता है विच कॉल्ड मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया हैव लॉट ऑफ content inside. It start with paper pencil. It start with sketching. When you convert your idea into any idea, it may be a logo, it may be a random character, it may be a random shape and size. Whenever you will put on your own thought on any, in fact आप कंप्यूटर में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, तो जो आप फॉन्ट देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ फॉन्ट्स, वो फॉन्ट भी मल्टीमीडिया से ही क्रिएट किए जाते हैं, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप टू डू एनीथिंग इज द पेपर पेंसिल. Once you are done with this, then you convert that content into a visuals which called graphics. And if you put any effect on that graphics, if the graphics are moving, that's called animation. If you are putting any sound effect or any two different type of, you are merging two different visuals at the same time, that's called editing. And if you are adding any extra effects, for example, my nose can get enlarged, मेरे कान बड़े हो जाएं, मेरे बाल चेंज हो जाए, पीछे से ट्रेन चलने आ जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग मीटिंग जब करते हैं ऐसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, सो वी ट्राई टू वर्क ऑन दैट, राइट? हम लोग हमारा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, सब करते हैं, दैट्स कॉल्ड VFX। इन अ सिंपल एंड इजिएस्ट लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 4-5 तरीके के काम है जो पूरे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बनते हैं। आपको पता है, इंटरेस्टिंगली, इसी को ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। एंड ऑरेंज इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली। आप अगर देखेंगे, जितनी भी मूवीज को आप देखते हैं ना जो 3D में कन्वर्ट होती है, ऑल द मेजर पार्ट ऑफ द मूवीज, नॉट ओनली द इंडियन मूवीज, इनफैक्ट द अब्रॉड मूवीज, they got converted into 3D here in India. And that's effects that that kind of work comes under multimedia. But हमने जिस काम से स्टार्ट करना था, that was only related to image cropping. अब बात ये आती है कि मैं प्रोग्राम से पहले आपको क्या इंफॉर्मेशन चार्ट दूं। पहली चीज कि आपको जब कभी अपने बच्चे के लिए कोई भी करियर पाथ चूज करना है, आपको उसका इंडस्ट्री साइज समझना है। अगर वो इंडस्ट्री ही ग्रोइंग नहीं है, देयर इज नो फ्यूचर। आपको ये समझना है कि उस इंडस्ट्री के अंदर व्हाट काइंड ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट्स आर देयर। आपको हर इंडस्ट्री का एक सेक्टर स्किल काउंसिल मिलेगा। आई रिपीट इट, एवरी इंडस्ट्री हैज अ सेक्टर स्किल काउंसिल। IBEF की वेबसाइट में, once you will travel on IBEF website, once you will click on the industry, you will find lot of industry, aviation, chemical, IT, e-commerce। हर इंडस्ट्री का एक सेक्टर स्किल काउंसिल होता है। आप में से जो पेरेंट अभी यंग पेरेंट है, वो चिल्ड्रंस आर इन द ब्रैकेट ऑफ लेस देन 10 years, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिनके बच्चे 18 साल से ऊपर है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को कैंडल बढ़ाना सिखाएं, या अपने बच्चे को मल्टीमीडिया सिखाएं, अपने बच्चे को कंप्यूटर ग्राफिक्स सिखाएं, जो मर्जी सिखाएं, बट द नॉलेज शुड अलाइन विद सेक्टर स्किल काउंसिल। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है बिकॉज वंस यू विल कनेक्ट द सेक्टर स्किल काउंसिल गाइडलाइंस, इट बिकम इजी फॉर यू टू employ the child easily with any corporate house. That's the second point what I wanted to address. The third point is livelihood की चिंता हम सबको रहती है। डिजिटल स्किल हम सबको सीखनी है। क्यों सीखनी है? At the end of the day, आप whatever knowledge you do, but you wanted to pursue some kind of engagement. अब उस engagement में जब आप किसी बच्चे को कॉर्पोरेट में भेजते हैं, this is very important point, third point, जो सारे पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितनी सारी कंपनीज को पिछले दिनों में देख पा रहे हैं, in last precisely in 2 decades of time, lot of companies we have seen who comes from somewhere IT and computer graphics form of industries. आप देखेंगे इन कंपनीज के यहाँ सिर्फ ओपन एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। देयर आर 2 more type of employment but you need to learn. The one is called remote work accessibility, that is remote work employment, जिसको हम लोग साधारण शब्दों में work from home बोल देते हैं, but work from home is a temporary assignment. The long term assignment is the remote work. The second is called project based employment. Project based employment is also a very fancy term precisely used by the IT industry. ये 2 employment मैं आपके दिमाग में इसलिए डाल के जा रहा हूँ, आप अपने बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाएं, wherever you are working today, whatever contact you have, whatever people come approach to you and they want you to hire your child, आप उस बच्चे को इन 2 dimensions के लिए भी और खोलिए। The reason which is very important for point number 3 is because आज की डेट में पूरा इकोसिस्टम, all the corporate houses across the world
are bound to follow certain type of DEI, which is diversity, equity, and inclusivity, or sustainability, or maybe some of the other form of CSR. I'm talking about all the big size and structured companies. The fourth and most important learning for everyone is the right type of assessment. अगर आप बच्चे को बिना किसी पढ़ाई के, आप देखिए IIT से पढ़े हुए बच्चे जो होते हैं उनको आमतौर में कुछ ना कुछ नौकरी मिल जाती है, मगर जो हमारे आसपास में जो बहुत सारे XYZ PQR इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेजेस खुलते हैं, यू मस्ट हैव सीन, उनमें पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं BPO में जाके जॉब करते हैं, बाद में KPO में जाके जॉब करते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद. द रीजन बिहाइंड, द रीजन इज द बेस लेवल स्क्रीनिंग. आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे की जर्नी, more than money, I assume the time is very important. You should understand where you are going to invest your child's and your time, for what type of learning. Is the child is ready to pursue that kind of knowledge? Is the institute is capable enough to gel with my child's, issues? अगर ये बेसिक फंडामेंटल काम हमने किए हैं, मुझे लगता है भावना जी, डिजिटल स्किल और डिजिटल इकोनॉमी में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आज पूरा दुनिया उसी के इर्द गिर्द बात करना चाहता है. अब एज भावना जी आस्क्ड मी कि मैं आपको थोड़ा सा वो ग्लिम्स दिखाऊं उस प्रोग्राम के बारे में जो हमने कुछ किए हैं. सो आई विल नॉट टेक मच टाइम, मैं डायरेक्टली उस पेज पे आपको लेके आता हूं. जस्ट टेल मी यस और गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन सी माय स्क्रीन. Yes, we can. Wonderful. So this is all about AEMP. By the way, AEMP is not the company name. Our company name is Ames Media Private Limited. Ames Media Private Limited established in 2008 and incorporated in 2013 as a private limited company. AEMP is one of the venture, one of the social impact product of Ames Media Private Limited. AEMP started with the vision of only pursuing and supplying multimedia education, but today it is not just bound and limit towards to multimedia. It has 3D printing, it has 3D sublimations, it has coding, it has lot of different type of innovations, AI, virtual reality, different type of program based on the particular type of need of the child. As I mentioned you before, 14 years, I mean, now it is 15th year to be precise. 15 years we have already finished in this space. More than 25,000 beneficiaries we have impacted. 250 institutions are here in India. Globally, if I count, it is around 500 plus institutions with whom we have we have done some kind of collaboration. When we do any kind of collaboration with any school or any institution, that call as social alliance for in our language. This is a basic background about these. All are young people in our team. I mean, these are a batch of certain people. But I mean, the purpose of showing you this image just to tell you that we don't have any old age person in our team. All the people in the ground, they all are very young, energetic, dynamic, and everyone is associated with company for past 15 years. I mean, since the time when we started visiting about this stream. Now, I would like to tell you a very quick study, very quick background that what we have done so far. AEMP, when we started in first 2010 to 2014 time, it was a time when we were doing a lot of R&D. We met a lot of different type of institution. Because आप देखेंगे तो हमारा फोकस AEMP नहीं था, हमारा फोकस न्यूरो डाइवर्स बच्चे थे, हमारा फोकस स्पेशल बच्चे थे, हमारा फोकस कभी भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी और हेयरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं था इन अ फर्स्ट फेज. हम हमेशा एक थोड़ी बैटल को लड़ने आए हुए थे यहाँ पे, और इसलिए हमने 2010 से 2014 में वी मेट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल सो दैट हम हमारे प्रोग्राम को और स्ट्रेंथन कर पाए. और 2015 से 2020 तक हमने इस प्रोग्राम को ऑल ओवर इंडिया में हमारे रिसोर्सेज भेज के इसको हमने डायरेक्टली इम्पैक्ट किया, ताकि हम देख सकें कि इसके आउटकम्स स्केल लेवल पे कितने बड़े आ रहे हैं. और वो जो नोशन था कि बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता, आज बड़ी मुझे टेंशन होती है इस बात को जानकर कि आज भी एक बहुत बड़ा भारत है. हम क्योंकि फॉर्चुनेट है, हम दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में रह रहे हैं. आई डोंट थिंक सो इस मीटिंग रूम में कोई भी ऐसा पेरेंट है जो बिहार के छोटे गांव से आया है या मध्य प्रदेश के छोटे गांव से आया है या ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है,
क्योंकि उनको आज भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। जिनको पता ही नहीं है वो आज भी इस सवाल को लेके बैठे हुए हैं कि क्या ऐसा संभव है, क्या करना चाहिए। मुझे लगता है हमने 2020 तक वो पूरा नोशन तोड़ने की कोशिश करी, और हमने कई सारी तरीके के एम्प्लॉयमेंट हब्स बनाए। आई शो यू लेटर ऑन दिस पीपीटी। 2020 और 2021 एक ऐसा समय आया जब कोविड हो गया, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, और सारी दुनिया वर्चुअल इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगी। और बच्चे पहली बार घर पे, विद ऑल द प्रेशर, आप सोच के देखिए, घर पे सिबलिंग्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स का जॉब भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चा स्कूल भी ऑनलाइन पढ़ रहा है, फिर भी 2021 के बाद सभी लोग 2022 में अपने स्कूल में पहुंचे, इन इफेक्टिव वे, फुल स्ट्रेंथ जब पहुंची, तो हर स्कूल कहता था कि राकेश, now we have two type of schooling. We have online also, we have physical schooling also. And there are a lot of parents who used to say then, Rakesh ji, now we understand why virtual world is very important. My child is learning, my child is, getting enjoyed learning in a virtual platform. But I'll tell you, virtual platform की स्थापना आर्मी के आशा स्कूल में, या आसाम के कुछ स्कूलों में, या इंडिया के बाहर जहां पे हम पढ़ा रहे थे, जहां हमारे कुछ सेंसिटिव एरियाज में, जहां हमारे रिसोर्सेज नहीं जा सकते थे, वो हमने 2010 में स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। हमारा काम 2021 और 22 में खत्म हो गया था अकॉर्डिंग टू अस। अब क्या हुआ 2021 और 22 के बाद? 2021 और 22, क्योंकि इसमें 2024 तक की स्टोरी लिखी हुई है, 2021 और 22 के बाद हमने, क्योंकि काफी सारे स्कूल बंद हो गए, तो हमने लर्निंग सेंटर स्टैब्लिश किया। और हमें लगा कि हम उन बच्चों को जो वो वर द वेरी पोटेंशियल स्टूडेंट, सो वी हैव स्टार्टेड आवर ओन लर्निंग सेंटर फैसिलिटी आल्सो हियर इन दिल्ली, इन ग्रेटर कैलाश। और इस तरह के कुछ एईएमपी के अंदर हमने इनोवेशन करने स्टार्ट किए। आप देखेंगे, मैं आपको छोटी सी एक पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, और जहां पे मेरा कर्सर है, इफ यू कैन सी दिस, एंड आई विल ट्राई टू जूम दिस आल्सो फॉर यू। आप इस पिक्चर को देखेंगे और उसके बाद घर जाके सोचेंगे, ये वो बच्चे हैं जो 3D प्रिंटर पे काम कर रहे हैं। 3D प्रिंटर आमतौर पे 2020 से पहले सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मिला करती थी। ये हमने 2015 में स्पेशल नीड बच्चों के लिए 3D प्रिंटिंग जैसी एजुकेशन, नॉट जस्ट द मल्टीमीडिया, वी ट्राई टू गो बियॉन्ड ऑफ दैट लिमिट, कि हम और क्या कर सकते हैं इकोनॉमी में, और कैसा कंट्रीब्यूटर इनको बना सकते हैं। दिस इज ऑल वी ट्राई टू डू विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडियम्स ऑफ एजुकेशन। सो इसके साथ मैं आपको थोड़े से वो कुछ बच्चे दिखाता हूं जो अलग अलग फॉर्म में चले गए। अब आप ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए आपको। ये वर्क स्टेशन फॉर्मेट होता है हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का, एईएम। वर्क स्टेशन उस फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं वेयर वी डू पार्टनरशिप विद द स्कूल, एंड देन वी नर्चर द स्कूल along with the children, we nurture the parent along with the student, and then on a bot model, on a building, operating and transferring model, one fine day we say bye bye to the school, and we say, now school, please you start establishing, and you should start outsourcing the work for the children, and then establish the workstation. आप देखेंगे चेन्नई में, अगर आप में से कोई से है यहाँ पे, तो चेन्नई में मीरा चैरिटेबल ट्रस्ट करके, दिस वन वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव अ वर्क स्टेशन टुडे विद द नेम ऑफ अतुल्या। दिल्ली में एचएनएस के नाम से एक वर्क स्टेशन है, लखनऊ में है, बैंगलोर में है, और आज की डेट में भारत में लगभग ऐसे 20 वर्क स्टेशन है जहां हमारे और आपके स्पेशल नीड बच्चे जाते हैं, बड़ी शान से टाई कोट पहन के जाते हैं, और वो कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और वो काम आता कैसे है, वो काम किया कैसे जाता है, वो पूरी ट्रेनिंग में स्कूल, पेरेंट्स सबको सिखाया जाता है। बट ये एक तरीके के वो लोग हैं जिनको एक्सेसिबिलिटी की इश्यू हो सकती है, या ये मान लीजिए कि जो लोगों के फैमिली के पास उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है कि फैमिली उनको इंडिपेंडेंट लेवल पे नर्चर करे, इसलिए ये ग्रुप सिस्टम में काम करता है। बट साथ में आप यहाँ पे देखेंगे, राइट साइड ऑन योर स्क्रीन, आप देखेंगे देयर आर सर्टेन स्टूडेंट आल्सो हु हैव बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। लाइक आप अंजना को देखेंगे, तो आज अंजना दुबई में एक फ्रीलांसर है। आज अंजना दुबई में एक बहुत ही प्रोडक्टिव काम करती है। बहरहाल रिसेंटली अंजना को हमारी कंपनी की तरफ से एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिली। सार्थक, पर्ल, ये सारे वो बच्चे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड बने। एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल वो मॉडल है जिन्होंने दूसरों को नौकरी देना स्टार्ट किया।
AEMP ने, डिजिटल इकोनॉमी ने, उस प्रोडक्ट ने जो लोगों को असंभव लगता था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव इंपेयरमेंट कंडीशंस की, हम बात कर रहे हैं जहां पे कॉम्प्रिहेंशन के इश्यूज हैं, हम बात कर रहे हैं वहां पे जहां पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के इश्यूज हैं, हम बात कर रहे हैं वहां पे जहां पे क्रिएटिव स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग के इश्यूज हैं। उन सारी कंडीशंस के साथ कोई 4 एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। मैं इसमें से कोई एक एग्जांपल पिक कर लेता हूँ। एलेक्स का एग्जांपल पिक कर लेता हूँ बैंगलोर से। एलेक्स AEMP की एक स्टूडेंट रही है, and now today she runs a company called Pumpkin Patch. She's a very famous figure in entire Bangalore, and she's a very famous figure in internet also. Alex comes under the spectrum of autism, and now today she has recruited some of the so-called normal people like us in her company. आज वो उनको जॉब देती है, और ये सब कुछ संभव हो पाया उस 360 डिग्री ट्रेनिंग मेथड से जो हमने AEMP में डालने की कोशिश करी। कुछ वो भी बच्चे हैं जिनको बाहर बुलाया गया। आप में से अगर कोई दिल्ली रहता है या दिल्ली का है, और अगर वो, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत छोटी है, आप सब लोग एक दूसरे को जानते हैं मेरे हिसाब से, तो अगर आप में से कोई बिपाशा को जानता है, तो आज बिपाशा हांगकांग में काम कर रही है, एज अ डिजिटल क्रिएटर काम कर रही है। आज विशाल हांडा पॉपसुप जैसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। आज प्रणब बख्शी इज अ वेरी फेमस फिगर इन इंटरनेट एज अ फर्स्ट ऑटिस्टिक मॉडल फैशन इंडस्ट्री में। आज वो थॉमसन राइटर्स में काम कर रहा है। ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने बैरियर ब्रेक करके ओपन एम्प्लॉयमेंट में जाकर वो काम कर दिखाया, जिसकी तलाश शायद हम सब कर रहे हैं। 2021 के बाद क्योंकि मार्केट बदला, तो हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे प्रोग्राम्स को AI इनेबल्ड किया, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स हु कांट अफोर्ड द बिग हेवी cost softwares. So how they can be the part of this? So we have integrated whole learning with AI and open source. Obviously there are certain professional software also. AEMP में थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि लगभग 37 देशों में हमारा नेटवर्क है। कौन से हैं वो 37 देश? यही वो सारे 37 देश जो आपको दिख रहे हैं। These are the 37 countries where we have done a very intense dialogue, collaborations, build a network to understand. देखिए क्या होता है, क्योंकि हम इंडिया में जब तक मैं दिल्ली में काम करता था तो मुझे लगता था हमने कुछ दिल्ली में अनोखा काम कर दिया, बट जब हम बैंगलोर गए तो हमें लगा कि बैंगलोर में भी सिचुएशन सेम है। जब हम चेन्नई पहुंचे, जब हम हैदराबाद पहुंचे, जब हमने पूरा इंडिया ट्रैवल किया, तो हमें समझ में आया कि इंडिया का प्रॉब्लम सेम है। उसके बाद जब हम लोग वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करने लगे, तो खासतौर में पहले हमने एशिया कंट्री में ट्रैवल किया, तो हमें लगा कि सिचुएशन एक जैसी है। बट व्हेन वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको डेवलप कंट्रीज में कहा जाता है, हमें समझ में आया कि पूरी दुनिया एक कॉमन तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रही है। और जब एजुकेशन की बात की जाती है तो लोग फिनलैंड का नाम लेते हैं ना, मगर कोई स्पेशल एजुकेशन के लिए कौन सी बेस्ट कंट्री है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता होगा। नीदरलैंड इज द बेस्ट कंट्री जो स्पेशल एजुकेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट मॉडल मानी जाती है। फिनलैंड बाकी सब रेगुलर एजुकेशन के लिए माना जाता है। हमने ये सब कुछ लर्निंग, हमारे प्रोग्राम्स को इनेबल कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है, इसमें क्या मूवमेंट चाहिए, ये सब हमने यहाँ किया। ये स्लाइड जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सबके काम की। तो हो सकता है आज इस मीटिंग रूम में आउट ऑफ 66 पीपल, मे बी वन ऑफ द पर्सन हु इज जस्ट लिसनिंग मी फॉर लास्ट 15, 20 or 30 minutes, and maybe assuming, Rakesh, you are saying something very interesting, but I don't think so my child can be, will be able to do this because I know my child has a lot of different issues. ऐसा हो सकता है आप में से इस मीटिंग रूम में कोई बैठा हो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि लर्निंग अगर आपको सिस्टमैटिकल फॉर्म में दी जाए तो लर्निंग के 4 रूप बन के आते हैं। एक लर्निंग वो होती है जो आपको मीनिंगफुल तरीके से एंगेज करती है। जब कोई भी लर्निंग आपको मीनिंगफुल तरीके से एंगेज करती है, आपके इमोशंस को बर्स्ट आउट करने में मदद करती है, उस लर्निंग को हॉबी ओरिएंटेड लर्निंग कहा जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स हो या फिर म्यूजिक की क्लासेस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, ये सब कुछ संभव है हॉबी ओरिएंटेड सेगमेंट में। स्किल ओरिएंटेड वो कैटेगरी है जहां पे द ट्रेनेबिलिटी इज देयर, बट देयर आर सर्टेन स्किल विच आर नॉट फाइन ट्यून्ड येट। मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, कई सारे बच्चे जो होते हैं वो बॉल फेंकते हैं, बचपन से ही बॉल फेंकते हैं, एंड दे आर प्रोबेबली अ गुड बॉलर आल्सो, बट उनको ना बहुत टेक्निक्स नहीं पता है इन स्विंग आउट स्विंग करने की, मगर उनको टीम में ऑन बोर्ड ले लिया जाता है, उनको अकेडमी में हायर कर लिया जाता है। ऐसे बच्चे स्किल ओरिएंटेड कैटेगरी में आते हैं एक्सक्यूज मी, जिनकी ट्रेनेबिलिटी है,
बट उनके स्किल सेट रेडी नहीं. There are third category that's called career oriented category. Career oriented is the category of the learning where the child has a skill set and wanted to go beyond of the hobby or meaningful engagement, but wanted to learn the how the market operates. That's called career oriented learning, where you teach something which is related to market. For example, मैं अगर आप सबसे बोलूं कि मेरे पास जस्ट एग्जाम्पल, अगर मैं आप सबसे बोलूं कि आई हैव a set of 100 pictures of a jewelry brand who wanted to do image cropping for the jewelry and wanted to place these picture in any e-portal. तो आप क्या करेंगे? आपको हो सकता है आप में से कुछ को कैनवा आता होगा, आप में से कुछ को एआई में कुछ या पिक्सार्स करके कुछ सॉफ्टवेयर आते होंगे और आप उसमें एडिट करेंगे. बट आई टेल यू, वंस यू विल डू इट, आप जैसी ई पोर्टल को सामान बेचने जाएंगे, वो ई पोर्टल वो सामान खरीदेगा नहीं, बिकॉज ई पोर्टल हैज अ सर्टेन गाइडलाइंस. दिस डिजाइन शुड हैज टू डन इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, इन दिस पर्टिकुलर फ्रेम, इन दिस पर्टिकुलर साइज. जब आप कॉर्पोरेट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी काम को करते हैं, दैट्स लर्निंग बिकम्स करियर ओरिएंटेड लर्निंग. करियर ओरिएंटेड लर्निंग के बाद प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग वो सेगमेंट होता है जब आप मार्केट की नॉलेज को समझ जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द लाइव प्रोजेक्ट. फिर आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो डेवलप होता है. सो फॉर एग्जांपल, नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट फॉर द ज्वेलरी ब्रांड which software I should follow to crop the images, and now if I do in a real time for the jewelry brand, this learning will count as a project oriented learning. ये 4 तरीके की लर्निंग हमारे पास सन 2010 से सन 2024 तक कंटिन्यूअसली थी. सन 2020 से सन 2024 तक हमने हमारे फैकल्टीज को भेजना बंद कर दिया, एज आई सेड बिफोर, स्कूल्स में. और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक नई कैटेगरी डेवलप हुई, उसको बुलाया गया जॉब ओरिएंटेड कैटेगरी. वो एक ऐसी कैटेगरी हमने भारत में पहली बार स्टैब्लिश करी जहां पे 100% गारंटीड जॉब प्लेसमेंट की बात की गई, और उसको हमने सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ अलाइंड किया. उसका जिक्र इस कैटलॉग में नहीं है, उसका जिक्र मैं लास्ट में फ्यू मिनट्स में करूंगा. But I just wanted to tell you, these are the very famous 4 categories, which has worked in last 15 years of time with all the different institution. मगर कैरियर ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड का मतलब सर्टिफिकेशन नहीं होता. और ये सारे नॉलेज मैं आज आपको इसलिए नहीं बांट रहा हूं कि आप AEMP में आइए, ज्वाइन कीजिए या नहीं कीजिए. आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन so that please be mindful whatever you will do tomorrow, either it's coding, graphics, whatever, wherever you are, be mindful what type of certification you are going to get, क्योंकि इसी के आधार पे आपका पोर्टफोलियो बनता है. So there are 4 type of certifications and the last one is called degree. The 4 type of certifications are certificate suits, then certificate, then diploma and then advanced diploma. ये टर्म आपने शायद पहले सुने होंगे, मगर इन टर्म्स का कोई टेक्निकल मीनिंग होता है कॉर्पोरेट की दुनिया में. जब आप किसी सर्टिफिकेट को लेके जाते हैं तो वो आपके सिर्फ सर्टिफिकेट को देखकर ही पता लगा लेता है कि आपने कितनी डीप नॉलेज इसमें की हुई है. Skilling is one segment, but certification is the another segment. जब हम सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो वहां पे क्रेडिट साइज यानी नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लर्निंग काउंट किया जाता है. इसी के आधार पे पूरे AEMP को बनाया गया. बट फ्रेंड्स, दिस वाज नॉट दैट इजी, जितना मैं आपको 15 साल की जर्नी को एक स्लाइड के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना सरल नहीं था. क्योंकि जब आप एक डेवलपमेंटल सेंटर के साथ दोस्ती करते हैं, एक स्पेशल स्कूल के साथ दोस्ती करते हैं, एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के साथ दोस्ती करते हैं, गवर्नमेंट NGO के साथ दोस्ती करते हैं, तो आपकी लर्निंग बहुत डाइवर्स हो जाती है. एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल. जब आप एक ऐसे स्कूल के साथ दोस्ती करते हैं जहां पे सिर्फ डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, जब आप एक ऐसे स्कूल के साथ दोस्ती करते हैं जहां पे सिर्फ CP बच्चे हैं, जहां पे सिर्फ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चे, तो आपकी लर्निंग इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है एंड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स. अब इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हैं दैट ओके यू वांटेड टू जॉइन, प्लीज कम एंड जॉइन. देन इन दैट केस योर स्क्रीनिंग सिस्टम शुड बी वेरी सॉलिड. आपका स्क्रीनिंग पोर्टफोलियो इतना सॉलिड होना चाहिए जो प्रोग्राम से भी ज्यादा सॉलिड हो. जैसे कि जो बच्चे नीट पास करते हैं ना, या जो बच्चे सिविल सर्विस पास कर लेते हैं ना, वो क्यों कहा जाता है कि वो एग्जाम इतने कॉम्प्लिकेटेड है? उनकी पढ़ाई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बट द स्क्रीनिंग सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. क्योंकि अगर आपने सही टैलेंट को ऑन बोर्ड कर लिया है, you will never fail. तो वो स्क्रीनिंग सिस्टम हमने क्या एस्टैब्लिश किया? द स्क्रीनिंग सिस्टम वी कॉल
Creative Intelligence Assessment. We call it AEMP-CQ. AEMP-CQ आमतौर पे जब हम किसी बच्चे के साथ करते हैं तो हम उसके मोटर स्किल्स, उसके सोशल स्किल्स, उसके कम्युनिकेशन, उसके आर्टिस्टिक सेंस और कॉग्निटिव स्किल जैसे 4 मेजरेबल फैक्टर्स को 12 एक्टिविटी से मेजर करते हैं, और तब हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बच्चा इनमें से कौन सी कैटेगरी के लिए बना है और इनमें से कौन सी कैटेगरी में से इनमें से कौन से प्रोग्राम को करेगा, so that we can assure the same dream to the parent, same dream to the community, which the child can pursue, what the child can secure. और यही एक कारण है कि पिछले 15 साल में कंटिन्यूसली AEMP ने जहां भी काम किया है, we have achieved 100% success ratio because we were very sure from the beginning of the day what is our object of the learning. If your object of learning is clear, you will be never in dilemma. Behral, there are a lot of different tests also. There is one of the tests we call brain teaser test. ये सब कुछ ऑनलाइन भी पॉसिबल है, सब कुछ ऑफलाइन भी पॉसिबल है. ऑफलाइन सिर्फ दिल्ली में होता है, ऑनलाइन पूरी दुनिया के लिए हम लोग काम करते हैं. एज आई सेड यू बिफोर, हमारे पास हमारे डायरेक्ट लर्निंग सेंटर फैसिलिटीज भी हैं और स्कूल के साथ के अलायंस भी हैं. जब हम स्कूल अलायंस बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड सोशल अलायंस मॉडल. और इन कुछ पिक्चर के थ्रू आप देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में मेरे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई के सीईओ और उनके डिपार्टमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव लर्निंग की डायरेक्टर, ये दो लोग मेरे साथ खड़े हैं. और इस big mustache person, if you can see, he is the person who represent our whole work in entire Middle East, and we too are here from India office. ये पिक्चर आप जो देख पा रहे हैं भूटान के भूटान फाउंडेशन के कोलैबोरेशन की पिक्चर है, और ये इंडिया, ये 2010 के उस समय की पिक्चर है जब हम लोग AEMP की स्थापना कर रहे थे. स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी भारत का एक और सेक्टर स्किल काउंसिल है. 2020 से 2023 तक for continuously 3 years we were the industry partner for them to dialogue about the QPs and other things. बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पे जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो उसको एक रिकॉग्निशन भी मिलती है. हमें भी कुछ रिकॉग्निशन मिली, क्या है वो मैं भी आपको बताता हूं. बट सिर्फ आप लोगों को मशीन नहीं बना सकते. एक बहुत साल पहले मैं नीति आयोग के CEO ऑफ दैट टाइम अमिताभ कांत जी के साथ में था, और एक मीटिंग रूम था, एक फेलिसिटेशन हो रहा था, और वहां पर देयर वाज सम गुड डिस्कशन. पेरेंट्स के लिए नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको. उन्होंने बोला कि स्किल की डेफिनेशन कई तरीके की हो सकती है, बट स्किल की डेफिनेशन 3 भागों में बांटनी चाहिए, और बड़ी लर्निंग है ये. उन्होंने कहा देयर आर 3 टाइप ऑफ स्किल. वन इज कॉल्ड कॉग्निटिव स्किल, दैट मींस एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. नॉन कॉग्निटिव स्किल्स, दैट मींस एबिलिटी टू एक्सप्रेस. एंड थर्ड इज कॉल्ड टेक्निकल स्किल्स, दैट मींस एबिलिटी टू ऑपरेट. आपने अभी तक पहले 8 या 9 पेजों में जो भी सुना वो सब कुछ टेक्निकल स्किल के अराउंड था. बट जब आप किसी बच्चे को बाहर भेजते हैं, इकोनॉमी का हिस्सा बनाते हैं, तो मशीन लर्निंग के साथ साथ ह्यूमन लर्निंग भी बहुत जरूरी है. और इसीलिए हम लोग हमारी पढ़ाई के अलावा बच्चों को बीच बीच में मॉक इंटरव्यूज कराते हैं, उनको लाइव एंड पेड प्रोजेक्ट देते हैं, बच्चों को इंकरेज करने के लिए स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोग्राम चलाते हैं, फ्रेंड जोन एक्टिव करते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट करते हैं, छोटे मोटे हर सेलिब्रेशन को तो सभी सेलिब्रेट करते हैं. बट उसके साथ साथ पेरेंट एम्पावरमेंट हमारा बड़ा कोर है, ताकि कल अगर वो पेरेंट जो एलेक्स के जैसा निकले, कल वो पेरेंट जो जॉश की तरह निकले, वो पेरेंट्स अगर कोई सेल्फ एंटरप्रेन्योर बच्चे को बनाना चाहे तो पेरेंट्स शुड अलाइन विद देम. बहरहाल ये सारी स्टोरीज है. इस पेज में बहुत सारी स्टोरीज हैं अलग अलग बच्चों की. ये पेज मैं ऑब्वियसली आपके सबके साथ शेयर करूंगा. मगर मैं आपसे कह रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में जब आप कुछ काम करते हैं तो रिकॉग्निशन मिलता है. और AEMP को 2021 में इंटरनेशनल मार्केट में एक डिसेबिलिटी की फील्ड में जो बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मानी जाती है, दैट्स कॉल्ड जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड. एंड दैट आप कुछ कह रहे हैं भावना जी? So Rakesh, since seeing the importance of the time, and we shall be opening the session for parents' question also. What I have understood that there is a possibility there are courses available in multimedia. If you could just summarize in next 7 minutes that what are those courses and what are the requirement to get into those courses. You are asking the courses from our side or from the open market? From your side, and if there's time, then obviously you can talk about the open market also. So in the open market, digital. Let me talk about the open market first. The digital world is so big. Starts from developing any application, then making some AI-driven
some tools, and then using some kind of data entry, which is very orthodox, by the way, I assume, and then working on coding. There are a lot of avenues and options, because at the end of the day, when you have to sit on the screen, when you have to work on the screen, the kind of work, whatever you are doing, it counts as a digital work only. But the progress which has been measured, precisely the kind of audience we deals, it has been noticed, data entry, coding, uh, it is very doable, but with a very handful set of people. Because if we talk about high function, if we talk about the borderline cases, certainly they can do it with certain type of assistance. But there's a big lot who doesn't fall in that category, who have not even done their schooling, who have dropped down the schooling before 8th standard. In that case, there are basic type of literacy is very important for that kind of work. And in that area, media and entertainment industry becomes the big market. And we are expert in that. We are the only company who have done this particular job for last 16 years continuously for special children. So we have what type of courses? We have courses for any type of multimedia education. It is VFX, it is editing, it is sound editing, it is graphics, it is animation. But we don't say all this term. If you have noticed during the classification of the program slide what I showed, we have not mentioned about VFX and computers. We talked about the category. So we have 5 categories of program. We call it hobby oriented, skill oriented, career oriented, project oriented, and obviously job oriented is the category what we recently opened. I'm not talking about that job oriented category right now in this platform, because the last year we have opened the admissions. We have closed the admission now for that program. That program is basically for 3 years, and that's called Media and Mastery in Designing Excellence and Industrial Training, which is a 3-year program that covered industrial training and on-the-job training along with the program, and that assured a guaranteed placement. But by the way, now this year, this MDEIT, I mean the job-oriented program, is also available for Social Alliance, but only in the 3 cities, Bombay, Bangalore, and Delhi at the first phase. Maybe in the next phase, we will open for the other market also. But apart from that, we have 4 categories which are available, 4 type of certification as I showed you before. So all these programs fall under the category of, under the world of orange economy, which is creative economy. Perfect. There are a few questions which are here before actually opening the session for the parents. There are some questions which are coming here. The first question is that, sir, how can you tell from what age the child can pursue the course? ये सवाल सब parents के मन में होता है कि 10 साल, 12 साल, 15 साल, what is the right age for children to look for these courses? So देखिए, मैं इस सवाल का जवाब अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं उस तरीके से दूंगा जिससे पेरेंट्स समझ पाए. आप देखिए, आप अपने बच्चे को AIEEE की तैयारी कब कराते हैं? आप अपने बच्चे को, या आप किसी बच्चे को UPSC की तैयारी करते हुए कब देखते हैं? आप देखेंगे कि वो तैयारी कुछ बच्चे 10वीं कक्षा से करने लग जाते हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना स्टार्ट करते हैं. मतलब मैं सिविल सर्विस की बात करूं, AIEEE की बात करूं, तो कुछ बच्चे सिर्फ 12th के एग्जाम को खत्म होने का वेट करते हैं, और कुछ बच्चे 6th स्टैंडर्ड से तैयारी कर रहे होते हैं. सो आपके बच्चे को कब इन होना चाहिए, उसके लिए एज मैटर नहीं करता. Chronological age is not a factor to understand which age is right to opt this program. The factor is the creative intelligence. The factor is the conviction of the family. Because आप बच्चे के साथ टाइम पास नहीं कर सकते. If you are clear, if the institution is clear, then you have to start working with the child from any age. But जब मैं any age का बोलता हूँ तो मतलब 2 साल 5 साल का बच्चा तो obviously नहीं हो सकता. So right age to start our hobby oriented courses are from 8-year-olds. But just अब हॉबी के लिए तो हम इतना टेक्निकल कोर्स को करेंगे नहीं. द फोकस इज द एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट वाले कोर्सेज विच आर करियर ओरिएंटेड एंड प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कोर्सेज, for those courses the right chronological age is 14 years and above. But we don't give admission on the basis of the qualification background and the chronological age. The only thumb rule we have to give admission is the CQ test. Oh, that's a great answer, because the next question was about this only.
that my child has can read and write? Are there any courses for children who can read, write, but could not go to school? There is no education at all. Yeah, certainly, yes. Yes. Because I'll tell you, all the parents, another information, please, mark all this valued information, because I'm sure parent has to struggle a lot to grab, the good content from the market, because the market is full of information. I'll tell you, no corporate can say the no to you while taking any student on board for the employment if the skill sets are matching. तो जो हमें लगता है ना कि 10वीं 12वीं नहीं किया, there is another one thing is called NSQF, National Skill Qualification Framework. It has a set of levels. जो बच्चे 10वीं 12वीं नहीं कर पाते थे भावना जी पहले समय में, और उनको एक इंडस्ट्री का हिस्सा बनना होता था, इसीलिए एसएससी यानी सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनते थे. सो अगर आपका बच्चा 10वीं नहीं पढ़ा, 8वीं नहीं पढ़ा, और आपको लगता है वो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल को सीख सकता है, जॉब मिल सकती है, आप उस स्किल को सिखाइए, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के सेक्टर स्किल काउंसिल के अलाइंड होके करवाइए. Great, that was good answer. Full form of CQ test. What is CQ Sorry? test? CQ test. You mentioned somewhere CQ test. What is the full form of CQ test? CQ is creative quotient. I'm sure you all are fed up and tired and struggling with calculating the IQ from different tools all around your ages. But I'll tell you, IQ doesn't work. The recent theory says the intelligent quotient have 4 levels. The very first level is IQ only. And then after there are 4th level which doesn't work on intelligent quotient. It work on, and I'm sure you have heard of multiple intelligence theory also. It doesn't say that your intelligent quotient is only count when you have to deal with any kind of skilled work. So why we do with the creative quotient? Because the kind of economy, as I mentioned before, creative economy or orange economy or computer graphics industry believes to evaluate the creative tilt and the creative interest, so that we can map the right program. So creative quotient is the CQ. Great. So now the session is open for parents. You all can raise your hands and start asking your question. Feel free to use any language in which you are comfortable. So in case there is any question, yes, Purva has been waiting for very long. Yes, Purva, please ask your question. Sir, actually, mine is a 8 years old differently able kid, DS hai. Actually, he is here only, so I can't say the actual word. नहीं बोलिए ना. हाँ. तो ऐसा मतलब डिफरेंटली एबल्ड है. तो अभी सर क्या स्टार्ट करना चाहिए? लाइक अभी उसका 8 इयर्स एज है, तो स्किल ट्रेनिंग के लिए हम एलिजिबल हैं क्या? या फिर जो स्कूल्स वगैरह से आप जैसे कनेक्ट करते हैं, तो यदि हमारे स्कूल में भी इंक्लूसिविटी है, तो आप यदि कनेक्ट करना चाहेंगे, मतलब यदि मैं चाहती हूँ कि आप कनेक्ट हो सकें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, जिससे बाकी पेरेंट्स को भी हेल्प हो और हमको भी एज अ होल हेल्प होए ऐसा. ओके, पूर्वा जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. पहली बात, हमें किसी भी तरीके की हिच नहीं करनी चाहिए टर्म्स को यूज करने में, क्योंकि टर्म्स कोई बीमारियों का नाम नहीं है, ये सिर्फ कंडीशंस का नाम है. सर और बच्चे बहुत होते हैं, तो अभी I बहुत सोच understand. समझ के सब कुछ बोलना होता है. यदि I I say understand. particular word, then he keeps on repeating 2-3 times in front of me and in front of family. Mama, I am that, so I just avoid it. No, I understand and I respect your emotion. Why I'm telling you this, क्योंकि जब आप थोड़ा बच्चा अभी 8 साल का है, जब आप और थोड़े बच्चा जब बड़ा होगा, आपको एक बड़ी दुनिया के सामने बात करनी है, और बड़ी दुनिया के सामने बात करने के लिए आप we have to work inside. But I respect your emotion. Come back to your question. क्या ये सही एज है? मैंने कहा कि अगर आप मतलब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर. मेरे पास तो सब कुछ है. अगर आपके पास इतना समय है कि आप हॉबी से स्किल, स्किल से करियर, करियर से प्रोजेक्ट की यात्रा हमारे साथ करना चाहते हैं, तो प्लीज कम ऑन बोर्ड. फिर हम सीक्यू करेंगे, फिगर आउट करेंगे, और फिर हम उसको धीरे 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 ऊपर लेके चलेंगे. बट आपको लगता है कि नहीं यार राकेश, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, कुछ ऐसा चमत्कार बताओ जो 6 महीने में या साल भर में कुछ काम हो जाए, तो उसके लिए अभी वो सही एज नहीं है. उसके लिए 15 साल 16 साल के बाद एक सही एज आएगी, क्योंकि 1 साल 2 साल का पीरियड यानी 18 साल का हमें उस एज में आना पड़ता है, बिफोर टू प्लेस द पर्सन ऑन एनी काइंड ऑफ वर्क. तो यस, देयर आर 2 डिफरेंट आंसर फॉर योर क्वेश्चन. हाँ भी है,
अगर आप तैयार हैं तो, और ना है अगर आपको कोई बहुत शॉर्ट टर्म प्री कुक्ड फूड चाहिए। और रही तो बात आपके, यहाँ पे राकेश जी, मेरा सवाल ये आता है कि आप कह रहे हैं कि हमें कम से कम बच्चा 14 15 16 साल का होना चाहिए जब हम उस लेवल पे आना चाहते हैं। इमेजिन दोस चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव इवन बेसिक डिजिटल स्किल्स एंड दे आर 14 15 16 years old. व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर देम? वो कहाँ से शुरुआत हो कि उनके पास बेसिक डिजिटल स्किल्स हों ताकि वो आपके करियर ओरिएंटेशन या जॉब ओरिएंटेशन वाले कोर्स में आ सके? अब भावना जी, अगर आप, मैंने जो आपको आज 16 अलग अलग तरीके के बच्चे 4 फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दिखाए, इफ यू हैव नोटिस, मैंने उनमें से किसी भी बच्चे का आपको बैकग्राउंड या एज नहीं बताया, बहरहाल वो सब बड़े दिख रहे हैं, बट आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, इनमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसके पहले से प्री सेट डिजिटल स्किल्स थे। प्री सेट डिजिटल स्किल रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिक्वायरमेंट है सीक्यू। देखिए हम सीक्यू में चेक क्या करते हैं, मैंने आपको बताया सीक्यू में सोशल कम्युनिकेशन, आर्टिस्टिक सेंस, मोटर स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल चेक करते हैं। तो हम ये क्यों करते हैं? सो दैट टू इवेल्युएट द पर्सन इज ट्रेनेबल और नॉट, इफ यस फ्रॉम विच कैटेगरी एंड फ्रॉम विच प्रोग्राम। सो ओके। सीक्यू हमारा एक ऑल द ओनली सोल्यूशन टू अंडरस्टैंड। और सीक्यू लगभग पिछले 15 सालों में कुछ 15 से 20 हजार लोगों के साथ लगातार अलग अलग भाषाओं में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आप समझ पाएंगे कि उसकी जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है, इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। हाँ, जो आंसर जो क्वेश्चन पूर्वा जी का था कि 8 साल का बच्चा बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो कल बच्चा 14 साल का होगा तो शायद हमें 14 साल की एज में पता लगेगा कि हमें हॉबी ओरिएंटेड से शुरू करना चाहिए। ताकि अभी 8 साल से ही हम एटलीस्ट स्टार्ट कर दें, ताकि वो जब एग्जैक्टली, यस यस, आएगा तब वो बॉदर नहीं रहेगा कि अभी ये वोकेशनल्स में कहाँ जाएगा। बिल्कुल ठीक हम कह रहे हैं। ढूंढ रहे हैं, बट मतलब ढूंढेंगे उस टाइम पर, बट हमें एक माइंड स्किल क्लियर रहेगा कि 5-6 साल में हमारा बच्चा एक पर्टिकुलर लेवल के लिए, बी लेवल, ए लेवल के लिए रेडी हो गया है। सो अगर आप उस तरह के बिकॉज पूर्वा जी, एवरी, बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली माइंडसेट। अगर आप वो पेरेंट हैं जो उस यात्रा को सच में समझते हैं, आई वुड से प्लीज दिस इज द राइट एज, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चे के साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं। you can work on the behavior, you can work on the attention, you can work on the cognition, you can work on information processing। आप उसको टर्म्स दे सकते हैं, वो वो उसको उसको उसकी इंडस्ट्री के साथ फैमिलियर कर सकते हैं। सो आई वुड से यस, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, Before इट्स अ बिग। before I take our next question from Dr. Ragini, I myself have a question. वो सवाल ये है कि आप हम जैसे हम कह रहे हैं कि सीक्यू में हम उसकी मोटर स्किल चेक करते हैं, हम उसके, आपने कई सारी चीजों के नाम लिए, आप इसे थोड़ा आसान भाषा में हमारे पेरेंट्स के लिए बताएंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या स्किल, क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं, बहुत सिंपल आसान भाषा में, ये जानने के लिए सीक्यू टेस्ट करने ओके, तो हम जब किसी भी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं तो आपको क्या आना चाहिए? आपको कंप्यूटर में काम करना है, हो सकता है आपको माउस यूज करना पड़े, हो सकता है आपको पेन टैबलेट यूज करना पड़े, बट आपको कोई डिवाइस यूज करनी है। तो जब आप किसी डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं तो डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए आपके फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, जो ये देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके लिए कोई स्पेसिफिक पेंसिल बनानी पड़ेगी क्या, आपके लिए कोई स्पेसिफिक पेन टेबलेट लाना पड़ेगा क्या। सो वो सब का ऑब्जर्वेशन हमारे मोटर स्किल से किया जाता है, ताकि हम ये ऑब्जर्व कर पाए कि जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उस लर्निंग में आपका हिस्सा कहाँ से स्टार्ट होगा। क्योंकि एक्चुअल भाषा में मल्टीमीडिया 3 भागों में बटी है, 3 डिविजन्स में बटी है, उसको प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये मोटर स्किल हमें मदद करती है समझने में कि हम आपके साथ जो यात्रा करेंगे, जो आप पे इन्वेस्टमेंट करेंगे टाइम का, वो प्री प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। तो ये तरह पहला फाइन एंड ग्रॉस मोटर को असेस करने का। आर्टिस्टिक सेंस का मतलब होता है आपके पास, अगर मैं बोलूं कि मैंने ब्लू शर्ट पहना है और ब्लैक ब्लेजर पहना है तो मैं किस तरीके की टाई लगाऊं। हो सकता है आप बोलेंगे कि राकेश तो ऑरेंज टाई लगा ले, हो सकता है आप बोलेंगे कि राकेश पर्पल टाई लगा ले। बट 15 ओपिनियन जब मैं लूंगा तो उसमें से एक को अगर मुझे बेस्ट बताना होगा, वो बेस्ट जो क्रिएटिव टिल्ट है, वो क्रिएटिव टिल्ट कैसा है, उसका स्पॉन्टेनियस अंडरस्टैंडिंग कैसी है, अगर नहीं है तो क्या उसको नर्चर की जा सकती है, वो आर्टिस्टिक सेंस देखता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव इकोनॉमी की, एज आई सेड बिफोर, ऑरेंज इकोनॉमी। तीसरी बात है हमारी सोशल कम्युनिकेशन की। सोशल कम्युनिकेशन को निकालने का, चेक करने का जो तरीके क्या है, वो तरीके तो मैं भी आपको, बहुत लंबे तरीके हैं,
बट क्यों देखा जाता है? ताकि हम ये देख पाए कि वर्बल है, नॉन वर्बल है, उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा। हम उसके साथ जब इमेजिन करते हैं 3 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं या 2 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो थ्रू आउट हमें किस तरीके का टीचर नॉमिनेट करना पड़ेगा, उसके साथ हमारी डीलिंग कैसे होगी, उसके टीएलएम्स कैसे बनेंगे, उसके ट्यूटोरियल कैसे बनेंगे, ये सब सोशल कम्युनिकेशन से पता किया जाता है। उसको रिमोट वर्क के लिए तैयार करना है या प्रोजेक्ट वर्क के लिए तैयार करना है। कॉग्निटिव स्किल को चेक करने का कारण साधारण से ऐसा होता है क्योंकि जब आप किसी भी कंप्यूटर डिवाइस में काम करते हो तो बेसिक कुछ लेटर आपके सामने होते हैं। अगर बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरीज के साथ भी काम किया, बट हाँ, उनके साथ काम करने में हमारा समय लंबा चला जाता है। अगर बच्चा बेसिक प्री सेटिंग है, उसकी बेसिक लिटरेसी उसकी है, तो हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, कोई प्रॉब्लम हम इसको बोल रहे हैं, हम इसके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो इसकी प्रोसेसिंग कैसी है। तो वो सब चीजें हम सीक्यू के अंदर इस तरह से चेक करते हैं। आई थिंक पूर्वा जी का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन ये भी था कि क्या हम किसी स्कूल के साथ अलाइंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं पूर्वा जी, मगर हमारी कंपनी ने 2020 के बाद इंडिया में रिसोर्स यानी फैकल्टीज भेजना बंद किया है, और 2026 यानी इस साल हम पहली बार, मतलब 6 साल के बाद हम फिर से रिसोर्स भेज रहे हैं, बट सिर्फ 3 सिटी के लिए अभी, बॉम्बे, बैंगलोर और दिल्ली में। पुणे से अगर आप हैं, एज आई अंडरस्टूड, तो वहां भी हो सकता है, बट उसके लिए हाइब्रिड मॉडल होता है, और स्कूल के साथ हम बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। बट अगर आपका स्कूल रेगुलर स्कूल है जो सेंट डिवीजन खोल के बैठा है, वो कभी भी वर्क स्टेशन तक नहीं जा पाता क्योंकि उसके खुद के स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग दे आर बाउंड विद सर्टेन चैलेंजेस। That is inclusive school. हाँ, but in that case, we can initiate the conversation. We can nominate the right people to talk to them. But in that case, we need to understand, because every school have a different manifesto. कोई पूछ रहे हैं नीचे कि बॉम्बे में क्या है? बॉम्बे में हाँ, हमने एक्चुअली मैं अब वही बोलने वाली थी कि बहुत सारे पेरेंट्स का आपके कांटेक्ट नंबर, स्कूल डिटेल्स की रिक्वेस्ट आई है। वो हम इसके सेशन के एंड में सर अपना पूरा डिटेल नंबर एवरीथिंग विल बी शेयर, बिकॉज वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस। सो लेट्स क्विकली, आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर रागिनी टू आस्क अ क्वेश्चन। रागिनी जी क्विकली अपना सवाल पूछें, क्योंकि देयर आर मोर देन 10 पेरेंट्स हु आर पेरेंट। रागिनी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर और बहुत मोटिवेशन मिला। अभी तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, क्या करेंगे हम, अपने बच्चे का स्किल लेवल कहाँ तक जाएगा। एक्चुअली मेरे बच्चे में इंटरेस्ट सच में कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी कुछ है, और मुझे लगता है कि वो इस फील्ड में ही आगे बहुत अच्छा कर पाएगा, है ना। तो इसी वजह से मैं ये वेबिनार ज्वाइन भी की हूँ और आपसे रागिनी जी, बातें आपका सुन के सवाल आप। क्या है? आपका सवाल क्या है? हाँ, सवाल मेरा है कि जैसे अभी मेरा बच्चा क्लास 7 में है, ठीक है, तो अभी मैं आपके थ्रू कनेक्ट करूं या फिर 10 के बाद करूं, क्योंकि ऑब्वियसली 10 करवाना भी एक मेजर चैलेंज है हमारे लिए, है ना। तो कितना टाइम में लगेगा उस पे देने के लिए, स्किल पे देने के लिए, कितना मैं एजुकेशन मैं पे दे पाऊंगी, ये मैं सारी समझ चीजें गया आपका क्वेश्चन है। सवाल। मैं हाँ आपका सवाल समझ गया, और रागनी जी, इसी सवाल का एक हिस्सा मैं पहले आंसर दे चुका हूं कि कोई भी एज में आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, डिपेंड एज करेगा तो कि पता है सर, हाँ एज पता तो है, बिल्कुल पर किया जा अभी सकता है, समय का, हाँ। 10th के साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि हम्म, हम पहले तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसको कौन से सेट ऑफ कैटेगरी में डालना है। पॉइंट नंबर 2, इस प्रोग्राम के लिए आपको 5 दिन या 6 दिन का ट्रेनिंग नहीं होता, हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे के लिए ट्रेनिंग होता है, और बहुत ही फन फील्ड होता है, बहुत ही जॉयफुल होता है। इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेसफुल लर्निंग, इट्स अ वेरी फन लर्निंग, व्हेन यू मेक सर्टेन क्रिएटिव्स, बहुत इंजॉयफुल लर्निंग होती है, बल्कि आपके बाकी स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाती है। रही बात आपका बच्चा 10th में है, 10th देना चाहता है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो अकेडमिक्स है, और यहाँ पे बात हम स्किलिंग की कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वी द कॉम्बो ऑफ बोथ द थिंग्स। ओके, यू कैन डू इट। हाँ, तो आप और कभी आप भी शुरू कर कहाँ सकते हैं कांटेक्ट रागिनी करना जी। है उसको। हाँ हाँ, ओके। हाँ, यू और मुझे लगता है मैं सर एक बार कोडिंग में ऐसे ही सिंपली डाली थी मैं, तो ही वॉज इंजॉइंग, मतलब वो मजा आ रहा था उसको करने में, पर स्टडी और वो सब के प्रेशर में मैंने सोचा कि अब नहीं, ये तो मुश्किल हो रहा है। रागिनी जी जो मुझे समझ में आता है, स्पेशली बिकॉज मैंने आपके बच्चे के साथ पर्सनली हाँ काम हाँ किया हुआ है। मैम, आप तो आप ज्यादा एक जानती आप हैं। आप एक बार उसका असेसमेंट करवा लो, सर जैसा कह रहे हैं कि हाँ एक यस, आईक्यू टेस्ट होता है। यस, ये दे आर यस। प्रोफेशनल्स, दे विल बी एबल टू असेस हिम, और उसके बाद वो सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके साथ क्या कोर्स किया जा सकता है।
तो अभी इस सेशन के श्योर एंड में श्योर हम सारी डिटेल्स शेयर करेंगे, और अगर आपको ठीक लगे ओके तो आप अपने बच्चे का असेसमेंट ऐसे कर सकते ओके ओके श्योर सर हैं। ओके, श्योर अब थैंक मैं यू अशोक सर शाह थैंक जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। रागिनी जी, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। अशोक जी। Good evening, sir. I think we गुड इवनिंग met सर। long time back in Mumbai, in Kandivali. ओके It's सर। regarding my son. Now he's adult. Because when he was in the school, we met that time. ओके He has done graduation and film editing and other computer courses. ओके, Uh, वंडरफुल। but what has happened is he has become a jack of all, king of none. So I don't know. I would love to assess him, or you assess him, and what we best can do for him. He's attending. He's there in the on the meeting, and how you can help him to choose the something. Not after he's working in my own hospital at present, but his area of interest is something different. So if we can assess that and we can get in touch with each other, would love that. Certainly, Sokji, and I'm glad that we got connected to this platform after a long time. But yes, आपके बच्चे का हम assessment, we love to do that, and I think I can sense this pain. This is not just about your child and you. There are a lot of parents who invest a lot of years and clueless. It is just based on they assumes that there is an interest. I would strongly want you to recommend one thing. Every activity what person is doing, it doesn't call interest is the second form, and the third form is strength. It starts with the tilt. If I'm inclined towards something, it doesn't mean that I'm very much interested on this. That's why the screening is very important. And I'm sure the course what he has done, it must have done without screening, only based on the assessment, only on the based on the interest area and the observation. So tilt convert into the interest, and interest convert into the strength. So yes, we will do this. We will certainly figure out that how we can complement, because your son has already done something. So I think we will not recommend you a program which have a long duration. We have technical remedial solutions also which have a short duration, and we directly jump on the employability point. So we can take it forward, sir. Thank So you. we have again and again we are getting questions where and how. So participants, in the end of this session, we will share all the details of Mr. Dasmana's company, which will have their email ID and the number, and we will share Samarthya Foundation's details also. You can reach out to either of us, और उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेना होगा। ये ऑनलाइन असेसमेंट भी होता है, और जो लोग दिल्ली में हैं वो जाके फिजिकल असेसमेंट के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और असेसमेंट के बाद आपको खुद समझ में आएगा, बताया जाएगा कि कौन से जो 4 कैटेगरीज है उसमें आपका बच्चा फिट बैठता है। दे कैन बी ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो, दे कैन बी ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो। सर गोवा, मुंबई में मुंबई आके भी आपके ऑनलाइन हो सकता, मुंबई में आके भी आपका ऑफलाइन हो सकता है क्या सीक्यू? ऑनलाइन कहीं पे भी पॉसिबल है। बॉम्बे में सिर्फ हम लोग MDIT प्रोग्राम और कुछ सेलेक्टेड प्रोग्राम के लिए ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, और सिर्फ 7 इंस्टीट्यूशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग वी डोंट हैव लर्निंग सेंटर एवरीवेयर। किसी ने पूछा था बॉम्बे में कहाँ है, हैदराबाद में। जैसे हैदराबाद में शंकर फाउंडेशन, अभी भी किसी ने पूछा, तो शंकर फाउंडेशन के साथ हमारी एक लंबी पार्टनरशिप है। बॉम्बे में कहाँ है, SPJ साधना है, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बट दे ऑल आर आवर पार्टनर्स। हम लोग उनके साथ अलाइंस होकर काम करते हैं। आप अगर हमारे साथ डायरेक्टली ऑन बोर्ड आना चाहते हैं, तो या तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, या आपको हमारे हाइब्रिड लर्निंग मॉडल पे ऐड होना पड़ेगा। उसके लिए मैं अभी स्क्रीन में, अभी यहाँ चैट बॉक्स में भी एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप चाहें तो उनके साथ डायरेक्टली डील कर सकते हैं। असेसमेंट इज फ्री, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर CQ टेस्ट, एंड दैट टेक्स एटलीस्ट 60 to 90 minutes time. Perfect. That's Thank you. awesome thing. That's awesome. Swarnali Ghosh, okay, can you ask your question? Miss Swarnali Ghosh, yes. You're mute, ma'am. Miss Ghosh, you are mute. Can you hear me now? Yes, we. Hello, sir. My son has given a 12th board this time. Today was his last paper. He's in arts.
and he has a lot of, he's a techie type, and he loves gadget, and he has this kind of, if you can see, like he has this kind of creativity where he makes the models. So I want him to pursue further in. He has this digital talent and also this model making talent. Can you suggest anything for him in future? Oh, yes, ma'am. There is a child. I mean, not he's not just a small baby. He's a young adult now. His name is Arshdeep. Google him. You will learn about him. Arshdeep, AEMP. If you will type. So Arshdeep is a person. When he joined us, he was doing the similar kind of thing. He was more into making some what do you call characters, props. Okay. Yes, it can be used as a talent, but for that, again, the CQ would be the right thing to assess, because what happened a lot of time we assume as a third party, or as a parent. See, as a parent, we always love our children. We believe that whatever he or she is doing, because we have a different comparative and competitive analysis segment back of our mind. But when it comes about industry, we have to, assess the person little bit technically, so that we Yeah, can give I you the understand. clarity. So yes, assessment will give us very clarity that we can work with or not. If yes, then what type of program. But what I understood after after seeing the kind of work what you have shown to us through this screen and mentioned about your child, I think your son and Mr. Ashok Shah's son falls into the similar kind of category where the basic things are done. We just have to nurture the things in a very right shape. Yes, So yes. we can take it forward. Yes. I'm actually looking for a good mentor for him. He has a lot of talent, but I'm not finding a way for him in India. Ma'am, I was I'm like sorry really if you were interested not when I aware of saw it, but this. I'll tell you, we have a student from different part of the world, and we have student from Singapore. We have student from different, I mean, the so-called developed countries. They come. See, I'll tell you, the problem is not about the education. The problem is about how we will deliver. It is all We the live game in of pedagogy. Goa. Sorry, We live in Goa. no problem. There's We can do it virtually, ma'am. We can take it okay, forward virtually. Yeah. okay, okay. Thank you so And much. by the way, for all the parents probably were thinking, virtually, how it's gonna possible. I'll tell you, virtual things works better than in person. Point number one. Point number two, remote work accessibility is a big economy where people don't wanted to call the person in the campus, but they wanted to outsource, the work to work from home. So we can nurture the people in that way. Thank you so much. Thank you. Before I actually take up another, I asked Aditya Shah sir to ask this question. There are two questions which have come here. I want you to answer them quickly. Are these courses theoretical or totally practical? And second question, examples of area of project-based learning. Examples of area of project-based learning. Okay, thank you. First question, theoretical or totally practical? Not theoretical, totally practical, but theory is required sometime, as and when required, but very less, almost 10%. But again, it all depends the kind of program you are carrying. If I would say MDEIT, it's a program which have theory and practical both, even the industrial visit. But yes, when it is other programs, so it will depend program by program, but major part is the practical, not the theory. Second question is related to project-based learning. I can give you a very quick example, though I have already given the example of the jewelers, but I can give you another example. Let's say if you are a plastic manufacturer, Aditya ji, I'll take your question just a moment. I want to answer on this one. So if you are a plastic manufacturer, let's say you produce toys and you wanted to sell those toys in the e-portal, any e-portal, let's say on Flipkart. So you have to click the picture, you have to edit the picture, then you have to send the picture to the Flipkart to place. Let's say if you are doing everything from your phone and you are editing the picture the way it looks nice to you, maybe it will not work the way it will Flipkart requirement. So Flipkart will send you a set of guidelines. One day when you will learn the guidelines, one day when you will understand this kind of software they want and the kind of size and everything they want, then during the next level of learning we give project.
along with the training. That's called project-based learning. Project-based learning means earn while learn. Yeah, Aditya ji, you are sorry, Bhavna ji, you want to take other question? आदित्य आप अपना सवाल पूछ सकते हैं please. Good evening, sir. Rakesh, sir. Sir, good evening. Yeah, sir. I just wanted to few things. I've joined already Tally course in this year because I've already rejoined from Tally, Advanced Tally now to give Okay. to get some laptop with the class. So even when my teacher is not there, she must be in out of town. She'll be coming by 8 March. So after that, I'll go back to Gulab computer class. That's why. Because I'm joining some Tally course now because instead of data entry now. So I'm going to hospital to join to do senior MRD with hospital management, and I passed hospital management course. That's why. Thank you, sir. Wonderful, Aditya. Glad to know this, and all the very best. We look forward to take you someday with us. You know, Okay, Aditya, today's success of our session is that there's someone who's talking for himself available. Yes. Big round Yeah. of applause for you. Really good to see Aditya for you. Thank you very much for participating. Yes, there is somebody called Zoom user. That's a great name. May I ask you to ask your question, sir? Zoom user, sir. Yes, my name is Sunena, and we live in US, New Jersey. So I have a son who is 17 years old, and I'm homeschooling him currently. So I have a question like for such kind at any level he can start, and how can we contact you? Is it possible remote from here, or is it any organization here present who can help? So thank you and welcome this meeting. And yes, the child can pursue the training from that place. We have certain, if I'm not wrong, because Dr. Maria is the operational director for this entire system. And already I have shared one of my facilities manager number here. Her name is Suparna Das. You can see on the chat box. Our website is theaemp.com. In the contact box, you will find all the information, though I have already shared the number of the right contact person. You can fix one day because you are in US, so I'm sure the time zones will be a problem. But I wanted to ensure that because we have students from different time zones, so we have faculties from different part of the country who can serve the children in their convenience time. So you can take it forward. I have already shared the number, and we will fix one day the assessment, that CQ test, and then based off this we will understand. Just another part of question was, is there anyone who can help you? We have a lot of Indian friends who are doing wonderful job there in India, in US, but most of these activities are related to livelihood. Related to life skill, related to meaningful engagement. I'm sure you are aware of, right? Yeah. But not related to some kind of technical skills. And the challenge is, because if you see, the all big companies, if I say Google or Amazon or Apple or all these companies, when they launch their program as a philanthropy or as a CSR, they wanted to, their focus point, their manifesto is to empower as many as people about the basic set of skills, but it doesn't align with the Indian market or the international market related to the employability. That's the only catch point that we have to fix. And that probably we will do it through the help of assessment. Sure. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Timing looks very aligned. We are left with 2 more minutes and we have 2 more questions. Only request is that कि अगर आपका सवाल ये है कि मैं यहाँ हूँ और बच्चा मेरा कर सकता है नहीं, वो सवाल ना पूछें, क्योंकि उसका जवाब हम सबको मिल चुका है. आपका बच्चा आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं. बाकी जैसा कि राकेश जी ने कहा, मुंबई में कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ कर सकते हैं, डायरेक्टली इनके साथ आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, और दिल्ली में है तो दिल्ली में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकता है. प्लीज वो सवाल ना दोहराएं. आई रिक्वेस्ट कृति सेनवाल जी टू आस्क हर क्वेश्चन. नमस्ते सर, मैं देहरादून से बात कर रही हूँ. अभी तक आपने जो भी मतलब बताया है, काफ़ी कुछ हमें समझ में आया है. आई जस्ट गो डायरेक्टली टू माय क्वेश्चन. इज द प्रोग्राम इज सेम program for all the student,
लाइक हर बच्चे के अलग अलग हॉबीज होती हैं, लाइक सम चिल्ड्रन आर आर्टिस्टिक, सम चिल्ड्रन आर गुड इन म्यूजिक, सम आर गुड इन बेकिंग। तो इज देयर द कोर्स इज सेम फॉर, बिकॉज मल्टीमीडिया इंक्लूड्स एवरीथिंग, तो क्या उसमें सब के लिए एक ही कोर्स है या अलग अलग कोर्सेज हैं आपके पास? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमारे पास 165 प्रोग्राम्स हैं। अगर जो फाइल मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और जो मैंने शेयर करी थी, आप उस फाइल को देखेंगे जहाँ पे कोर्स बाइफरकेशन आपने देखा था, हॉबी, स्किल, कैरियर और प्रोजेक्ट जब लिखा यस, था, और नीचे 4 कैटेगरीज ऑफ टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन लिखा था। व्हेन यू डू यस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, इट कम्स अराउंड 165 प्लस प्रोग्राम्स। बट यस, आपका सवाल बहुत सही है कि मल्टीमीडिया में तो म्यूजिक भी आता है और बाकी चीजें भी आती हैं। जब आप मल्टीमीडिया में म्यूजिक और बाकी चीजें बोलते हैं, देयर आर टू वेज, वन इज इंस्ट्रूमेंट एंड अनदर इज द साउंड, और यू नो द आउटकम। द आउटकम इज मल्टीमीडिया बट द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट मल्टीमीडिया। तो अगर यस, आप इंस्ट्रूमेंट प्ले और इन सब की बात करते हैं, वो हम लोग नहीं करते हैं। बट आप म्यूजिक को एडिट करने की बात बोले, आप यू नो सम काइंड ऑफ एनिमेशंस बनाने की बात बोले, बिकॉज इन सारी इंडस्ट्रीज में, all these audiovisual industries need all this kind of computer graphics. So आपके सवाल का बड़ा साधारण सा जवाब है, computer graphics is the industry that's called CG industry. So multimedia, probably it sounds a very heavy word to you, so please yeah. focus on CG industry. So yeah, my son, he is very good in music. He is very inclined to the music, and by God grace, he is a very good singer also. और उसको थोड़ा बहुत रीडिंग, राइटिंग एंड थोड़ा सा टेक सेवी भी है। मीन्स उसने अभी वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये सब सीख लिया है। थोड़ा बहुत एआई भी यूज करता है। तो जी, आई जस्ट वांट टू इंक्लूड हिज हॉबीज, और जो जो स्किल वो सीख रहा है, मीन्स इफ वी दोनों को कंबाइन करके अगर हमारे पास कुछ नया निकल के आता है, क्योंकि सिंगिंग है एक देखिए आ सकता है कीर्ति जी, अगेन इट ऑल डिपेंड कि आप, क्योंकि आज आप उस माइंड फ्रेम में बैठे हैं जहां पे आपने एक चीज तो देख ली है, दूसरी चीज अभी आपको पता नहीं है, दूसरी यस, चीज हमें भी नहीं पता है। सीक्यू से हम बस ये पता कर पाएंगे कि हम उस पर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वी हैव टू गो फॉरवर्ड विद द चाइल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, यस और नो। अगर हमें वो समझ में आ जाता है और हम आगे बढ़ते हैं, बट मीनवाइल अगर आप श्योर नहीं है, तो होगा क्यों? क्योंकि हमारे आज यहाँ पे इस मीटिंग हॉल में जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, हमारे बच्चे उस स्टेज पे नहीं होते जहां पे वो अपने लिए 100% डिसीजन ले। अगर वो 98% भी ले रहे हैं, तो 2% की डिपेंडेंसी उनकी हमारे पास होती है, with ट्रू, ट्रू। respect to finance, with respect to place, their career into the market. वो 2% की क्लैरिटी अगर पेरेंट को है, हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे पेरेंट हमारे साथ रहे हैं जिनके बच्चे बहुत कुछ पहले कर रहे थे, बाद में उन्होंने ये करना जब स्टार्ट किया तो उनको करियर गाइडेंस मिली। देखिए हमारे यहाँ एक बात पे बड़ा जोर दिया जाता है, अगर आप शुरू से सुना होगा तो मैं कैटलॉग दिखाने के भी फेवर में नहीं था। मैं आप सबको एम्पावर, बिकॉज माई जॉब इज नॉट हियर टू यस, सेल द प्रोग्राम, my job is to empower the parents so that all of you can take a right decision. It is not just about computer graphics or music, it is all about the decision, what you teach, whatever you are going to adopt for your child. So agar aapko lagta hai ki you are right, in the way to take any kind of new further risk, 6 महीने का, साल भर का, we can go forward on this. But I am telling you, अगर हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो हम जो भी गारंटी, जो भी एश्योरेंस आपको फर्स्ट डे देंगे, उसको हम स्टैंड कर पाएंगे। आई हैव वन मोर क्वेश्चन। आप जो आपने कहा कि ये पेरेंट्स एम्पावरमेंट की आपने बात कही है, सो व्हाट आर द प्रोग्राम्स एंड हाउ यू डू दिस द पेरेंट्स एम्पावरमेंट? देखिए हमारी कंपनी एक एजुकेशन सॉल्यूशन कंपनी है, हमारे पास बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है। आप जब समझ सकते हैं, हम जब हजारों लोगों के साथ काम करते हैं तो बहुत कुछ है। बट आज का टॉपिक क्योंकि डिजिटल स्किल और एईएमपी के आसपास है, तो मैं उसमें इतना बताऊंगा कि हमारे पास एक मेथड होता है, दैट्स कॉल्ड पेरेंट्स ट्रेनिंग सेशन, दैट्स कॉल्ड द कलेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथड, सीटीएलएम बोलते हैं हम उसको। वो ओके। सीटीएलएम, उसका मतलब होता है कि जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं, हम सेम नॉलेज पेरेंट को भी पढ़ाते हैं, ताकि पेरेंट कल की डेट में अगर कोई रिमोट वर्क है या एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है या कुछ भी ऐसा काम है जो बच्चे के साथ करना So है, we can support the child that time. यू कैन सपोर्ट द चाइल्ड। Yeah. Great. Okay. Thank you for your question. Thank you so much. Yeah. लास्ट क्वेश्चन रोहिणी जी का है। मीनवाइल अगर किसी और से कोई भी क्वेश्चन हो, आप यकीन मानिए वो अनआंसर नहीं जाएंगे। आप इनबॉक्स में टाइप करें, वी ऑल विल श्योरली गेट बैक टू यू with your queries, with your answers.
जब तक रोहिणी जी अपना सवाल पूछेंगे उसके बाद हम राकेश जी की सारी डिटेल और सामर्थ्य की डिटेल वी विल शेयर एवरीथिंग विद यू। रोहिणी जी प्लीज। Miss Rohini, are you there? Would you like to ask any question? I think she is mute and she don't. Okay. Can you hear me now? Yes. Okay. So thank you for the information. My question is related to AI. Now, even in normal industry, everybody is saying AI is taking all the jobs, or how this is going to happen. And basically, our kids, if we compare with normal kids or typical kids, uh, people might think about them little less. I mean, I'm saying that about the whole world. So how AI is going to affect this, and how sustainable this industry going to remain? That it's my question. Because Okay. like you said, like candles are not going to be used anymore. Just like that with AI, I'm also thinking about this training. I mean, definitely I want to give training, but I'm uh, All little right. skeptical. Rohini ji, thank you for asking this question. Just give a very different insight. I'll tell you very honest and one point. I don't know how much of us even know about AI. AI is a very macro term. AI, if a lot of people are saying that AI will replace a lot of jobs, it will take a lot of jobs, they are not talking only about one segment of people, they are talking about different segment of people. To be precisely about the people who are into content writing, about research, these are the first level of job who are going to, who are in threat. The second point is AI, if you are a user of any platform of AI, if you have understood, you must have to buy it. And the kind of companies we are talking about, they don't buy, the Chat GPT, they don't buy Gemini, they don't buy any other platform. They build their own platform. And when they build their own platform, they are not doing this for the first time. All the big size company, they are doing this job for many years. There were a lot of company who never, who never have bought Photoshop for graphics or Max for animation. They have bought something or the others. They have built their own. So it all depends on the kind of job profile. The point number three, creative and computer graphics kind of CG kind of industry, it will not be dent like the way the content writer or research team will be dent. The reason is because AI can give you a lot of different options, but there is a somebody who have to dialogue with the end user, and we have to put the lot of human impact on the designs. So AI certainly is threatful, but at the last fourth point, if you have noticed when I was talking about the program framework, I have mentioned, I gave a force also on that point that all our programs are now backed by AI and open source market. I mentioned this during my slides presentation. So you don't need to worry on that. Yes, there are two different type of market, but AI will certainly take next almost 1 and 2 decade of time to set up into the market, not on creative industry, but for other industries. Okay, thanks. Thanks for that. Thank you, everyone. Thank you, all the parents, for taking out such a valuable time from your busy schedule, that too on a Friday evening. Meanwhile, I'll request my colleague Sanika to share all the details related to Samarthya Foundation on the screen. इस दौरान तब तक राकेश जी, in case you have any contact slide where parents can connect with you, you can keep that ready. After that, we will share that slide. You please put all your contact details in the chat box so that parents can reach out to you. मैं एक बार फिर आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ सामर्थ्य फाउंडेशन, जो कि लगातार दिस वाज this webinar series is just a very small part of our efforts to empower parents, reach out to parents, provide information to those who do not have information. आप लोग किसी भी तरह के फैमिली रिसोर्स सामर्थ्य फाउंडेशन, this is on your screen. You can find out the contact number and the organization details. You can reach out to
This is the number. Yeah, this is the mobile number. आपका अभी कोई सवाल हो, किसी तरह की और चीज की क्वेरी हो, आप बच्चे को किसी असेसमेंट के लिए हमारे तक पहुंचना चाहते हैं, और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि पुणे वालों को भी एम्स मीडिया की कुछ मदद मिल सकेगी। हम लोग सामर्थ्य के माध्यम से वो सेवा आप तक पुणे में भी उपलब्ध करवा सकेंगे। We'll try our best for that. But Samarthya Foundation, with the sole aim of finding out family based approach. तो अभी आपने ये इस प्रोग्राम के बारे में सुना, इसका भी कोर मकसद यही है कि पेरेंट्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स एम्पावरमेंट, so that parents can also train their students, and that's the alignment of talks about. All of you feel free. I will request Mr. Dasmana to share his contact details on the screen. All the parents, please take a screenshot. Please note down the information. For any further information, for any further guidance, for any kind of help, feel free to reach out to Samarthya Foundation, also the AIMS Media. Here is the information available. I will give you a few seconds to note down the information and take a screenshot of it. Hope this solves your question. So I would like to suggest, when you are taking screenshot and information here, for when it is mentioned for social alliance and corporate affair, the email ID which is here, AMP Social Alliance, and the contact number of the person who do only the school level collaboration, I mean the institutional collaboration. But if you wanted to talk only about your child, if you wanted to come board with us directly, so see, I mean, Suparna is the person, AMP facility. Her detail I have already shared on the chat box, but you know, you can take a screenshot. But yes, for your individual child, this is the contact person. For school collaboration, this is the contact person. Someone has asked, where is your Dubai work? Sorry? Where is your Dubai work? Dubai parents, how can they connect? So in Dubai, we are collaborating with Tender Hearts, SNF, Ambassador. Tender Hearts with Nina ji? Yes, Nina ji. Yes. I am in Dubai. Right now I'm in Dehradun, but I am Dubai based. Oh, you are Dubai based. Okay. Yes. So we are very aggressively working with Prerna, if you are aware. Yeah, Prerna, yes. Mohanji, I saw the picture. Mohanji is there. Yeah. Mohanji is the Yes. resource. Meeta ji and Meeta Chopra, she is handling it. So SNF is a very active partner, but Ambassador, James, these are also some of the others, but yes. So thank you so much. Thank you, Rakesh ji. It was indeed one of the most memorable sessions I and my team had, and I'm sure this is the view which parents also share, because this is a very, very big and important aspect of parenting, that you look for your child's livelihood. You, at a point, you try to start thinking what next, what else we can do. This information is going to really help everyone, and all the parents, thank you for making this session a very successful session. Please share this information with those parents who are not able to join today, and reach out with this information to everyone. Wait for another very informative session next month. This is going to be really amazing residential solution. We'll come up with that. And all of you have a great weekend. Some amazing gifts. Thank you, Rakeshji. I'll connect with you offline. There are many other things we have to talk. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Have a great weekend. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you.